Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So, शुरू करते हैं आज का lecture. We are still doing analysis of financial statement, and in that I am explaining the part which is ratio analysis, and in that I have already done the ratios which were based on balance sheet, and right now I am continuing to solve the ratios which are based on income statement. अगर आप लोग सोच रहे हैं क्या कहा इसने, बैलेंस शीट कहा, उसके बाद में इनकम स्टेटमेंट कहा, देन माय डियर आपको थोड़े रिकैप की ज़रूरत है. तो प्लीज़, all the lectures are in a sequence. If you have missed out the previous lectures, so my request, प्लीज़ वो देख लेना. अदरवाइज डेफिनेटली जैसे मेरी परिस्थिति है कि यहाँ पे कुछ डालो सटक जाएगा, उसी तरह आपके ऊपर से भी पूरा एक्सप्लेनेशन सटक जाएगा, स्लिप हो जाएगा. यू डोंट वांट दैट टू बी हैपनिंग. So please watch the lectures right from the beginning. Today my concentration is on teaching you one more problem based on operating ratio. So gross profit ratio covered up, net profit ratio covered up. I told you last time, even though textbook के अंदर operating profit ratio का question नहीं दिया है, ढूंढने में कोई problem नहीं है. Operating profit आपके पास होगा, वो numerator upon net sales into 100. आज भी आपको मैं दिखा देता हूँ. In fact आज के क्वेश्चन में थोड़ा और हम कुछ डिस्कशन कर पाएंगे. सो आज का क्वेश्चन किधर है? ओके, ढूंढ लेता हूं मैं पहले. हियर गोस. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो. इफ यू डोंट सी अ क्वेश्चन नंबर एंड अ पेज नंबर अबव, प्लीज नोट इन द टाइटल ऑफ द लेक्चर द क्वेश्चन नंबर एंड पेज नंबर इज ऑलवेज गिवन. तो एनीबडी एनीवेयर ऑन यूट्यूब अगर वो क्वेश्चन नंबर और वो पेज नंबर डाल लेगा ना, तो सर्च में ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तो वो थोड़ा सिंपल हो जाता है. ओके, यहाँ पे हमने क्यों नहीं डाला है अभी और इसके आगे से, क्योंकि द लेक्चर्स कैन बी व्यूड लेटर ऑल्सो, एंड व्हेन द टेक्स्ट बुक गेट्स अपग्रेडेड तो पेज नंबर क्वेश्चन नंबर थोड़े चेंज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन उसके वजह से क्रिएट हो सकता है. तो इसके लिए हमने टाइटल में डाल दिया, एंड इन फ्यूचर वो टाइटल हम मॉडिफाई कर पाएंगे. ओके, दिया क्या है? काफ़ी सारी चीज़ें दी है. कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑपरेटिंग रेशियो. कुछ लेक्चर्स वेरी शॉर्ट एंड सिंपल. मैगी नूडल्स 2 मिनट में. मम्मी अगर बीमार होती है ना, तो एकदम रेयरली मम्मी बोलती है मैगी बना के खा लो. ओके, रेयरली. तो मतलब शी कैन इमेजिन द चाइल्ड मेकिंग मैगी नूडल्स. सिंपल होता है,
बस डाल दो, 2 3 5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा पक जाएगा. ओके, हाँ, ये वो सम नहीं है. There are more information provided to you in this particular sum. What is that extra information? Let's see. From the following details calculate. क्या भाई क्या क्या डिटेल्स दिए हैं आपने? फर्स्ट, अच्छा, इन्होंने दिए है सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स आ जाएगा हमको. ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक. होल्ड ऑन, सीओजीएस के अंदर आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक. ओके, तो सीओजीएस रेडीली नहीं दिया. नेक्स्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग. ओ, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बेसिकली इन द प्रीवियस 2 लेक्चर्स व्हाट वाज रेडीली मैगी नूडल्स गिवन टू अस. आज ऐसा नहीं है, आज तो ये थोड़ा बिरयानी स्टाइल लग रहा है. धीमी आंच पे रखो, उसके बाद में उसको दम बनाने के लिए रखो, थोड़ा टाइम जाएगा. नो प्रॉब्लम, थोड़ा प्रैक्टिस हमारा हो जाएगा. सो पहले तो रेशो लिख लेते हैं, विच इज दिस. But then nothing of COGS, operating expense and net sales is readily available. उसके लिए मेरे ऊपर एक कैलकुलेशन आने वाला है, तो मैंने मेरा पोजीशन चेंज कर लिया और वो कैलकुलेशन में राइट करना स्टार्ट करता हूँ. यू ऑल्सो कॉपी. रीजन, बिकॉज दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्यों आया, कैसे आया, कब आया. ओके, हाँ, तो वो क्यों, क्या, कैसे, वो CID का क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर यहाँ पे है. सेल्स वॉज गिवन 5 lakh. Sales return we will minus. If sales return is not given, so sales becomes net sales. Chalo, not in this question. Net sales in this question, which is very important for any income statement ratio, gross profit ratio, net profit ratio, operating profit ratio, सबके लिए ये बहुत important है. Okay, less cost of goods sold directly नहीं दिया. उसमें क्या है, पहले आपको opening stock ऐड करना है, थोड़ा मसाला परचेसेस का डालना है आपको. और कभी क्या होता है ना, बहुत तीखा हो जाता है जो डिश आप बना रहे हो. ओके, तो कुछ ही दिन पहले मैंने कुछ घर पे कुक किया और जो मिर्ची थी ना थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो दोपहर के खाने के बाद में सभी लोग भड़क उठे, चिल्ला उठे, कितना तुम कौन सा गुस्सा निकाला है, इतना तीखा बनाया. तो मैंने बोला थोड़ा चेंजेस कर लेता हूँ मैं इसमें से, तो कुछ डाल के मैंने उसका तीखापन माइनस कर लिया. उसी तरह यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है आपको. सो 60,000 प्लस 2,20,000 माइनस 40,000 gives you and me cost of goods sold, which is 2,40,000. तो cost of goods sold तो आ गया, हाँ, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस का क्या, उसके बगैर कैसे सॉल्व करोगे. ओके, चलो आगे जाते हैं. इसके बाद तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, विच इज नेट सेल्स ऊपर 4,50,000 माइनस COGS अभी जो आया है. ओके, so if you wish to I will point it out for you, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Here goes 2,10,000. After this क्या आता है, less operating expenses, and in operating expenses you and me have to write 3 office, selling, finance. कोई भी सीक्वेंस रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है. इन दिस क्वेश्चन फाइनेंस नहीं दिया, ओके, मत लिखो फाइनेंस, बाकी तो लिख लो आप. 34,000 ऑफ ऑफिस का खर्चा and selling and distribution 36,000. So 34 plus 36 is total operating expenses. A plus B plus C, we don't have a C, तो A plus B कर दिया. Till now ये जो 70,000 आपको दिखता है ना, you can solve this ratio. क्यों? So COGS तो है, operating expense भी आ गया और net sales तो पहले से ही है. I will just continue and फिनिश दिस एंड शो यू कि इसके आगे अगर आप जाओ तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढ सकते हो, विच इज NPBT, NPAT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इन माय नेक्स्ट लेक्चर ये NPBT, NPAT भी अलग आ सकता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर. दिस इज 1,40,000. जरूरत नहीं तो भी मैंने आपको दिखा दिया, बिकॉज द मोर द टाइम्स आई रिपीट दिस फॉर्मेट द मोर द टाइम इट गेट्स रजिस्टर्ड इन योर माइंड. वेरी सिंपल है, कोई भी गाना 10 बार सुनो. कभी कभी इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखते रहोगे ना, सो मेनी ऑफ यू विल बी वॉचिंग. ओके, वो रील्स देखोगे तो एक पर्टिकुलर चीज ट्रेंडिंग पे होती है, एक पर्टिकुलर डायलॉग, एक पर्टिकुलर डांस स्टाइल ट्रेंडिंग पे, वो इतनी बार वो रील्स में रिपीट होता है कि आप बोलोगे यार आंसर का तो पता नहीं, ये रील का म्यूजिक मेरे को बाय हार्ट हो गया, ये रील का डायलॉग मुझको बाय हार्ट हो गया. हाँ, बिकॉज वो इतनी बार रिपीटेड रहता है.
यहाँ पे भी कुछ वैसे ही है. We can solve our ratio above. What is that? 2,40,000 COGS plus 70,000 upon net sales into 100. Again, the answer that I am going to get if I shift a little from here, and the answer that you get can be a little different in the decimal point, which is 68.69. तो किसी का 70 आ सकता है, किसी का 67 आ सकता है, कोई 89 के जगह पे 88 आ सकता है या 90 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उतना एक डेसिमल फैक्टर चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वो करेक्ट ज़रूर मिलेगा. सो इन द पास्ट 2 लेक्चर्स वी हैड मैगी नूडल सम्स. आज मैगी नूडल नहीं, थोड़ी और, चलो बिरयानी वाली तो मेहनत नहीं की है हम लोगों ने, बट थोड़ी मेहनत ज़रूर की है इन ड्रॉइंग दिस एंटायर वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट. व्हेन आई मीट यू फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट प्रॉब्लम इसका करेंगे हम लोग, और उसमें सबसे लंबा चौड़ा आपका ये वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट या रेवेन्यू स्टेटमेंट होगा. द फॉर्मूला रेशो दैट हैज ऑलवेज बीन वेरी सिंपल, 5 लाइन खत्म, बट उसके जो इंग्रेडिएंट्स के लिए जो CID हमको करनी पड़ी है, ये वाला, वो काफी टाइम लेता है. नेक्स्ट टाइम वी विल डू अ मच बेटर एंड अ लिटिल बिट लॉन्गर क्वेश्चन. तब तक के लिए this is Steven sir, this is a goodbye from me once again. To take care of your family members, your seniors and juniors. Share ज़रूर कर लेना, like ज़रूर कर लेना, and अगर comments रहेंगे doubt category में वो type up कर लेना. I will do my best to respond to you or to incorporate those doubts as a solution in upcoming lectures. Good day to all of you. God bless.